Hi, welcome you all to the next session of Advanced Accounting. In this session, we will be completing with the three threshold for registration. What are the threshold for the registration? Then we will be covering with the composition of tax payee. Then is the regular tax payee. Clear to it? These three main aspects we will be completing with this session. Let's start with the session. As you all know, we have completed with the three basic components, that is CGST, IGST and SGST part of it. Then we completed about what are the full form of what are the full abbreviations of this. Then we completed what are the key components for that. Then we completed what is the union territory for GST, what is SGST in detail, CGST in detail. Then we completed about the introduction and meaning part, how it came into existence and which taxes did it replaced. This all concept we completed with. But today in this session we will be moving further with the chapter that is threshold for the registration. Am I clear to it? Let's begin with the session. Okay. GST means threshold for the registration. GST means goods and service tax. It is the tax on sales, purchases and sales of purchases and services. It includes all tax such as sales tax, service tax, excise duty, etc. into one tax, that is GST. It is a tax which is levied on the almost all the business in India. A business or a company means to pay GST if their annual sales turnover is more than 2 lakhs, they are making sales outside the state. If they are making sales outside the state, then even if the sales are less than 2 lakhs, we advise you to opt for the GST registration because of the following reason. You cannot sell outside your state. You will not get any tax refund on purchase. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी बिजनेस का टर्नओवर अगर 2 लाख से ऊपर है सेल्स का या किसी भी चीज़ का, तो वो कंपनीज को GST इज़ अप्लाइड मैंडेटरी. देन अगर आप सेलिंग आउटसाइड अगर इन यूनियन टेरिटरीज है तो 10 लाख का टर्नओवर चाहिए. बट दिस थ्रेशोल्ड और द रूल्स फॉर द GST सेज अगर आपका कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो जहाँ पर आपका 10 लाख या 20 लाख से कम भी टर्नओवर है, तो प्लीज़ डू द रजिस्ट्रेशन फॉर द GST. वाई? बिकॉज यू कैन इफ़ इन द फ्यूचर इफ़ योर बिजनेस एक्सीड्स फॉर द फ्यूचर इंट्रा स्टेट लेवल और एनी अदर लेवल, then the GST can be applied for that. Clear to it? Okay. Next one is the GST registration mainly takes 2 to 6 working days to complete the entire registration process. GST का जो registration process है उसमें mainly 2 से 6 दिन लगते हैं registration process को complete करने के लिए. It will not take much time for the registration. First one है conditions for registration. First condition, registrations के conditions क्या है? The GST registration GST registration is PAN based and it is specific to the state. GST का जो registration है वो PAN based है और वो specific है states से लिए. The supplier has to register himself in every state or यूनियन टेरिटरी फ्रॉम व्हेन ही और शी इज़ सप्लाइंग द गुड्स. उसको अपना रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट में करना है जिस स्टेट से वो गुड सप्लाई करने वाला है या सप्लाई कर रहा है. रजिस्ट्रेशन फॉर GST इज़ मस्ट इफ़ ही और शी फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. अगर नीचे के फॉलोइंग कंडीशन जो अब मैं बताऊंगी वो कंडीशंस अगर कोई भी बिजनेस फुलफिल करता है तो उसके लिए GST मस्ट है. क्लियर टू इट? ओके. नेक्स्ट देन क्या है वो? लेट्स सी दैट अ बिजनेस हैविंग द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख्स. अगर एनुअल टर्नओवर 20 लाख्स है किसी भी बिजनेस का या 20 लाख से नीचे है, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी के केस में दैट इज़ 10 लाख से, तो ये दोनों में भी दोनों सिचुएशन में आपको GST मैंडेटरी हो जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए. सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रेंटल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस outside India
टू एन इंडिविजुअल इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पेई। देखो, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो जहाँ पर आप एक डिफरेंट कंट्री में हैं एंड आप वो जो सर्विस है वो इंडियन को प्रोवाइड कर रहे हो, नो मैटर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, रेंटल सर्विसेज, तो ऐसे केस में आपको जीएसटी अप्लाइड हो जाता है। नेक्स्ट वन है सप्लायर्स एजेंट। अगर आप किसी सप्लायर के एजेंट हैं तो आपको भी जीएसटी करना मैंडेटरी है। ई कॉमर्स ऑपरेट्स और एग्रीगेशन हु सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द ओन ब्रांड नेम। अगर जिसके पास जो ई कॉमर्स डील कर रहा है, ई कॉमर्स में डील कर रहा है या फिर एग्रीगेट है बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस का, और वो किसी के अंडर है या वो खुद कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी जीएसटी इज़ मैंडेटरी। मेकिंग सेल्स टू अदर सेल्स, अगर स्टेट्स, अगर आप सेल्स कर रहे हो और उसमें इन्वॉल्व है इंट्रा स्टेट, मीन्स तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बीच में अगर आप सप्लाई कर रहे हो, या तमिलनाडु या गुजरात के बीच में, सॉरी राजस्थान के बीच में आप सप्लाई कर रहे हो, तमिलनाडु या दिल्ली के बीच में आप सप्लाई, आपका ट्रेड है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको जीएसटी अप्लाइड हो जाता है। नेक्स्ट है हैविंग ब्रांचेस इन मैनी स्टेट्स और मैनी बिजनेसेस वर्टिकल इन अदर स्टेट। अगर आपके बहुत सारे ब्रांचेस है बिजनेस के इंडिया में, इंडियन स्टेट्स में, तभी भी आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है। इट प्रेजेंटली रजिस्टर्ड अंडर वन ऑफ द अर्लियर टैक्स रेंज सच एज सर्विस टैक्स। अगर आप इसके पहले जीएसटी नहीं भरने के पहले, जीएसटी नहीं आया था, तो उसके पहले अगर आपको कोई भी टैक्स के अंडर आप रजिस्टर्ड हो, जैसे सर्विस टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स है, वैट है, देन वी हैव कस्टम ड्यूटी, ऐसे अगर उसमें भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो एप्लीकेबल हो जाता है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इन केस योर सप्लायर इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यू हैव टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चेंज। अगर आपका सप्लायर जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, आप किसी से सप्लाई ले रहे हो एंड यू आर द परचेसर, बट द सप्लाई व्हाट यू हैव रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ परचेस इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो इन सच केस ऑल्सो you have to pay GST for the purchase. In certain cases this happens and that is called as reverse change. Cleared? Then we have need to deduct tax at source or an import service provider. अगर आप एक import service provider है तभी भी आपको टैक्स पेमेंट करना ज़रूरी है। क्लियर टू इट? ओके। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अभी तो ये हो गया कि फॉर्मेलिटीज़ क्या है, कौन लाइबल है टैक्स पेमेंट्स के लिए, ये था इस पार्ट में। एंड विच कंपनीज आर लाइबल। नाउ फर्दर में क्या पढ़ा हमने कि कौन से कंपनीज लाइबल है। नाउ विल स्टडी व्हाट इज़ द प्रोसीजर। अभी मैंने पहले ही बताया कि प्रोसीजर विल टेक 2 to 6 वर्किंग डेज फॉर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। एंड लेट्स सी वो 2 से 6 दिनों के बीच में क्या प्रोसेस होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू विजिट द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ जीएसटी एंड सर्च फॉर रजिस्ट्रेशन टैब। सबसे पहले जब आपको रजिस्टर करना है तो आपको जीएसटी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है और वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन टैब होता है, उस टैब पर आपको क्लिक करना है। इन द सेकेंड स्टेप यू नीड टू इनपुट मोबाइल नंबर, और सेकेंड स्टेप में आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है एंड स्टेट इन द पार्ट ए, और आपको स्टेट का नाम डालना है कि आप कौन से स्टेट में है ऑफ फॉर्म जीएसटी। ठीक है, आपको आपका फॉर्म नंबर में स्टेट्स डालना है। ठीक है, ओके। आफ्टर द ओटीपी वेरिफिकेशन वंस यू पुट इन, जैसे आप ऑफिशियल पोर्टल पे जाते हो, रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करते हो और बेसिक डिटेल डालते हो, जैसे टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, देन आईडी नंबर, वोटिंग आईडी, ऐसे नंबर्स डालते हो। सॉरी, वोटिंग आईडी नहीं है, पैन नंबर है, देन मोबाइल नंबर है, देन ईमेल आईडी है। जब ये आप डालते हो देन यू विल गेट एन वेरिफिकेशन ओटीपी on your mobile number. With that OTP you will get a 78 TBN, that is temporary reference number on your mobile email. आपको जो OTP के ज़रिए से जो OTP मिलेगा उसको TBN बोलते हैं, that is temporary business reference number, TRN, that is temporary reference number. And in the next step you need to fill part B of form CGST. ठीक है, signed by
I signed by DSC or VCE. After that you have to upload the necessary document as per the business types. अभी क्या बताया है, जैसे ही आपको आपका TRN आ जाएगा तो आपको फॉर्म नंबर 2 दैट इज फॉर्म B फिल करना है GST रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस टाइप्स. In case of any detailed requested from you and initiated to you in form GST, you may need to go to the concerned department to clarify it or show the document within 1 week to the form. Okay. और आप जब आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके वो इसका वेरिफिकेशन करना होता है कि व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट विच इज़ टू बी अटैच विथ. और जैसे ही आपका क्लेरिफिकेशन हो जाता है देन यू कैन प्रोसीड फर्दर विद दैट. क्लियर टू इट? ओके. नेक्स्ट वन इज़ your application may be rejected. Department clarify. Okay, your application may be rejected by the officer if it is contain any kind of error. अगर आपके फॉर्म में प्रॉपरली फील्ड नहीं है, कुछ एरर है, तो ऑफिसर उसको रिजेक्ट भी करता है. यू विल इन्फॉर्म अबाउट दिस इन द फॉर्म GST. आपके ये फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या रिजेक्टेड हुआ है. अंडर द वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी. जैसे आपका अप्रूवल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो आपको GST सर्टिफिकेट इशू हो जाता है. डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा. क्लियर टू इट? दिस वॉज वॉट वी स्टडीड. क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों को ऑफिशियल पोर्टल ऑफ GST पे जाना है, एंड वंस वी गो ऑन द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ GST देन वी हैव टू टैब सर्च फॉर द टैब दैट इज़ रजिस्ट्रेशन टैब. जैसे हमें रजिस्ट्रेशन टैब मिल जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू जस्ट क्लिक इट ऑफ. हमारे पास उसमें GST फॉर्म A ओपन हो जाता है, एंड इट विल आस्क फॉर सर्टन बेसिक डिटेल्स लाइक योर पैन नंबर, like your mobile number and your email ID, because once you put your mobile number there will be TRN which will be sent to your mobile number, that is the OTP, that is reference. ठीक है? TRN is nothing but temporary registration number. Once you get the TRN for the verification on your email ID on your phone, then on the second step you need to fill the form 2. It will you have to select the states which state your business is applied to and the type of business in which you are dealing into, and they will ask you to provide certain documents for the uploading. You have to provide the document for the uploads. You have to upload the document. If you have any doubts with respect to the uploading and all, you have to go to the concerned department with respect to that, and they will upload the document once it is verified. If your form is being verified and if it is correct, then the next step will be to issue the certificate of GST. But if it contains certain errors, then the GST if it contains certain errors, then the official will reject the form and it will be shown on the form what is been uploaded. आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म पे आपको समझ में आ जाएगा कि there is certain error and the form is not getting verified or by the officials. Clear to it? This was what we studied into it. Please go through the video, understand the concepts, and let me know if you have any doubts and queries. I can solve your doubts and queries there and there itself. Once we complete with the theoretical part of this chapter, then we will move with the practical chapters of this of your syllabus. Clear to it? Okay. In next chapter or in the next session, we will be dealing with the registration process फॉर GST इन इंडिया. ये मैंने आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाया है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज बेसिकली अ जनरल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विच इज़ फॉलोड इन इंडिया, कैनेडा एंड ब्राज़ील. क्लियर टू इट? ओके. बट in the next session I will be showing you or I will be explaining you the proper procedure what is followed in India. Clear to it? Okay. Please take care of yourself. As you all know कि pandemic is increasing, and be at home and be safe. Thank you all. Thank you. See you in the next lecture.